evening. You're watching Explosive Exclusive. I'm Padmaja Joshi. There is now, 24 hours later, an uneasy calm in Haryana as the state limps back to normalcy following the violence on the 31st of July. 41 FIRs have been filed over the violence in Nuh and 15 into the violence that broke out in Gurugram. Over 120 people have been arrested so far in both districts. But over the next few minutes, we want to put the focus on the truth, the motive, and what led to the violence. Times Now is reporting from ward number 9 in Nuh, where devotees of a community claim that they were attacked by a massive mob of over 400 to 500 people. The details that we are getting to you are from the FIR, which is with the police, which is going to form the bedrock of the entire investigation. The FIR says that 400 to 500 people gherawed 35 to 40 yatris, and that the complainants saw the armed mob raging with sticks and stones, firing at devotees using illegal weapons. Here's what Times Now found when we went to ward number 9. It's been more than 48 hours since the violence erupted in Nuh district in Haryana, and we have reached one of the flashpoints. This is one of the religious places which finds itself in the flashpoint, because here some of the devotees of of one community who had come here for Jalabhishek, they were here as part of, they came fleeing from the attack from the mob that was going on a rampage. They were, throwing stones on them. So some of the eyewitnesses here who had seen those devotees who came to came for Jalabhishek were stranded in this particular religious place because they had no place to hide from the stones and then the sticks that the mob was trying to attack them with. One of the eyewitness and one of the resident of this particular area who had seen those devotees, they will tell their account. Aunty, कितने बजे वो लोग आए थे? वे किस टाइम आए? 2-2:30 बजे से आए हैं। लगभग कितने लोग थे, कैसे आए थे वो? वे तो जलाभिषेक करने आए थे वहाँ नल्लड़ पे। नल्लड़ पे जिस रास्ते में उनको घेर लिया गया, वे पहुँचने नहीं दिए वहाँ तक। ये कौन बताया आपको कि उनको घेर लिया गया? ये जो हमारे बच्चे गए थे वे बता रहे, छोटे छोटे बच्चे ही थे, इतने बच्चे जा रहे थे। जो लोग यहाँ आए थे जलाभिषेक करने के लिए, तो क्या वो इंजर्ड थे? क्या उनको चोट लगा था? चोट लगा था, ये सिर फूटा हुआ था, एक यहाँ ये लगा हुआ था, एक यहाँ से पत्थर से फूट रहा था, एक यहाँ से फूट रहा था, कई जगह से फूटा हुए थे। तो 30-40 लोगों में से कितने लोगों का ये हाल था? ये कम से कम ना तो 15-20 लोगों का था। Devotees coming here injured, they are speaking one thing that is amply clear, and that is that police did not come here at this particular spot to rescue the devotees who were injured. Remember, as that auntie said, that 15 to 20 of the 40 people who came about at this particular religious place were injured. Another eyewitness here. आप बताइए सर, आपने क्या देखा? कितने बजे ये लोग आए लगभग? ये जो बजरंग दल वाले आए हैं, ये करीबन 12-11 बजे के लगभग एंट्री करी मेवात के अंदर। तो यहाँ मैसेज चलते रहे इनों के पास, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, भाई यहाँ एंट्री कर चुकी है, इनको देखो। तो ये घेरते गए इनको और फिर इनको फतराब कर दिया। ये कैसे पता है आपको कि उन लोगों ने ऐसा प्लान किया? ऐसा प्लान किया, मैसेज आ रहे हैं, मोबाइलों पे मैसेज चले थे, व्हाट्सएप पे चले होते, फेसबुक पे चले थे। Ahead on the show, we will get you more and more such details coming from the FIRs. Meanwhile, the Chief Minister today said that not only will everyone involved in the clashes be brought to book, but the rioters will be made to pay the damages that have been incurred in the violence. हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है। हमने, कोई भी व्यक्ति हो, कोई हेट स्पीच दे, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो बनती है। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए।
अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें हैं। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं। However, what catalyzed the face-off is yet to be established. Those in charge of law and order, the state, seem to be speaking right now in different voices. While Chief Minister Manohar Lal Khattar had pointed at a pre-planned conspiracy, his own deputy, Dushyant Chautala, is also pointing a finger at the organizers of the Yatra when he said that it is they, the Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal, who did not give an accurate estimate, an accurate information to the district administration about how many people were participating, which may have been one of the reasons for the security apparatus failing. घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बनाकर रखें। Meanwhile, there was another discordant voice from within the BJP when Gurgaon MP and Union Minister Rao Inderjeet Singh met the Prime Minister, briefed him on No, but also said that both sides are to blame because the organizers of the Yatra, or rather the people participating in the Yatra, were carrying weapons without permission. अगर असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया। वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी है। कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पर कौन कौन लोग दोषी। Now, this blame game has led to divided opinions within the ruling ranks. Rallying behind the Chief Minister, his cabinet colleagues took on the JJP chief, countering the charge that the administration was kept in the dark. Haryana minister said that the violence was unexpected and the security deployment was not found wanting. तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है इसमें और निश्चित तौर से इसकी सच्चाई सामने लेके आएंगे और जो लोग दोषी हैं उन किसी को बख्शेंगे। In fact, the police has also weighed in, again saying that while the full investigation and all the angles are being probed right now, the organizers is outright denying the charge of laxity and conspiracy on their part. We will not spare anybody. All accused, all persons who are involved in this crime will be arrested and taken to a logical conclusion. हो सकता है दुष्यंत जी को ना दी गई हो, ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री को देना है। हमने स्थानीय प्रशासन को जानकारी भी दी थी, अनुमति भी ली थी। In fact, joining us on the Explosive Exclusive, we have the Speaker of the Haryana Vidhan Sabha, Mr. Gyanchand Gupta. Gyanchand जी, आपको क्या लगता है कि कौन है इस पूरे वायलेंस के पीछे, किसका हाथ है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब इसके जांच में कौन कौन लोग हैं, कौन वहाँ के स्थायी लोग हैं या कौन कोई बाहर से आए हुए लोगों ने ये वायलेंस क्रिएट की है, ये जांच का विषय है। पर ये बताइए कि एफआईआर में ये लिखा गया है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अटैक के लिए प्रिपरेशन कर रखा था, गन्स, असलाहा, पत्थर रखे हुए थे। क्या
ये बात सच है? क्या इसका कोई सबूत मिला है? नहीं, जिस प्रकार की वीडियोस सामने आए हैं, जिस प्रकार की क्लिप्स सामने आई हैं, आपने देखा कि लोग घरों की छतों के ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं। आखिरकार पत्थर पहले वहाँ पर इकट्ठे करके रखे गए होंगे और जब ये यात्रा वहाँ पहुँची है तुरंत उसके ऊपर पत्थरबाजी शुरू हुई है, गन शॉट्स सुनने को मिले हैं, गाड़ियों को फूंका गया है। कहीं ना कहीं पहले षड्यंत्र तो रचा गया है। ज्ञानचंद जी हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू गो अक्रॉस टू प्रोफेसर विधु रावल, स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी इन हरियाणा, एंड नितेश शर्मा, लीडर ऑफ द कांग्रेस. मिस्टर शर्मा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द फ्रेश डिटेल्स दैट आर इमर्जिंग कि वहां पर लोग प्रिपेयर करके आए थे? मुख्यमंत्री का कहना है कि ये बहुत पहले इसका प्रिपरेशन कर लिया गया था. एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि अवैध हथियार, लाठी डंडे, यहां तक कि एक बस का इस्तेमाल करके पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया. देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिसने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जो दोषी है, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. रही दूसरी बात कि अगर देश प्रदेश में कहीं भी 10 व्यक्ति भी इकट्ठे हो जाते हैं तो भी लोकल एसपी और पुलिस प्रशासन को इस बात का पता लग जाता है. और इतनी बड़ी जो साजिश रची गई थी, उसके पीछे मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है. मैं भारतीय जनता पार्टी का मतलब खुल के इस बारे में ये आरोप लगाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और जो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो लोग मिले हुए हैं और ये जो मामला है ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है. आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, पत्थर बरसाए हैं वीएचपी की यात्रा के ऊपर, वो भाजपा ने करवाया है? बिल्कुल 100% भाजपा ने कराया है. उसके अंदर चाहे मुस्लिम वर्ग से संबंध रखने वाले लोग हों, चाहे हिंदू वर्ग से संबंध रखने वाले लोग हों, जिसमें ये जो बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोग हैं, वो सब सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा हुआ है. वो उनको इससे क्या फायदा होगा? वो ऐसा क्यों करेंगे? ये हरियाणा में प्रदेश में कोई पहला मौका नहीं है. आप ये देखिए, हरियाणा तो चौथी बार जला है मैडम. पहले आप देखेंगे जाट आरक्षण के मामले में हरियाणा को जलाया गया, वो भी भाजपा ने कराया. हाँ बिल्कुल मैं प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा. और जो गुरमीत सिंह को अरेस्ट किया था वो भी फिर भाजपा ने जलाया. गुरमीत सिंह को पहले जेल में डलवाया और फिर खुद ही हरियाणा में आग लगवाई. मैं आंकड़े के साथ आपको बताऊंगा, आप एक बार मेरे को बोलने का मौका दीजिए जी. भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश में ये कोई पहली बार ऐसा मामला नहीं हुआ है. ये कम से कम चौथी 5वीं बार हुआ है. मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जाट आरक्षण के मामले में हरियाणा को जलाया गया. उसके बाद जिला हिसार में बरवाला के अंदर संत रामपाल के डेरे के अंदर यही रट कर आए हुए हैं पूरा रट्टा. उसके बाद पंचकुला के अंदर, हाँ नहीं उनको बोलने दीजिए, आपके पास भी आऊंगी. प्रोफेसर राम रहीम जी, संत गुरमीत राम रहीम जी, उस मामले के अंदर भी पंचकुला के अंदर इस तरह का मामला हुआ. हिंदुस्तान आजाद होने के बाद ये मेवात का पहला मामला है. अच्छा, प्रोफेसर रावल बीजेपी करवा रही है ये सारे दंगे? हाँ बिल्कुल 100%. 2000 ये बीजेपी ने करवाया है? बिल्कुल 100%. ओके ठीक है, लेट प्रोफेसर रावल रिस्पॉन्ड. सर, आपने बहुत लंबा एलिगेशंस का लिस्ट किया है, लेट हिम आंसर नाउ. प्रोफेसर विधु रावल. चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पद्मजा जी, ये एक तड़प है हरियाणा में सत्ता से बाहर. जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने इनको किया हुआ है, ये उसकी तड़प बोल रही है निश्चित तौर पर. और ये तड़प ही है जो बार बार हरियाणा को जलवा भी रही है. इन्होंने खुद ही बताया कि किस प्रकार से. बीच में मत बोलिए प्लीज वेट फॉर योर टर्न. प्लीज शो सम कर्टसी. कर लेना राजनीति, पूरा समय मिलेगा राजनीति करने का. ये समय नहीं है राजनीति करने का. Sir, you have asked you have made very grave charges. Now let him respond to that. You have made very grave charges, not just of dereliction of duty, but active abetment. So let him answer that, because this is very grave allegation on the government of Haryana. Answer, Professor Rawal. आप ये देखिए. अरे सर, मैं समझ गई, बट आप बोलते रहेंगे. कैन आई प्लीज हैव साइलेंस? प्रोफेसर रावल, ये आयरॉनिकल है कि आपने अपने शो पर हरियाणा के माननीय स्पीकर साहब को बुलाया हुआ है, विधानसभा के अध्यक्ष को बुलाया हुआ है. इनके सामने ही कांग्रेस के विधायक मामन खान, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्यव्रत जाव्रता को धमकाते हुए, डराते हुए और धमकी देते हुए बोलते हैं कि एक बार मेवात में आके दिखाइयो.
मेवात में प्याज फोड़ देंगे, इस प्रकार से कहते हैं। कोई यात्रा निकालोगे तो प्याज फोड़ देंगे। और दूसरा सीन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपके टीवी चैनल पर जो मामन खान वहां के स्थानीय कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने किसी गली नुक्कड़ चौराहे पे नहीं, किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं, हरियाणा विधानसभा के पटल पर खड़ा होकर यह बात कही थी। और दूसरा हम सीन देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस प्रकार से उन्होंने प्याज फोड़ने की बात कही थी, यहां पर क्या क्या फोड़ दिया। तीसरा सीन देख रहे हैं हम किस प्रकार रक्त पिपासु जब गिद्ध होते हैं जो लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर बैठकर उन्होंने अपनी कढ़ाई जिस प्रकार चढ़ा दी है आपके ऊपर। आप उस स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए जहां पे वो कह रहे हैं कि आप करवा रहे हैं ये। आपने षड्यंत्र किया कि विश्व हिंदू परिषद पर अटैक करवाया जाए। यू मेड द कंस्पिरेसी, ही इज सेइंग। पद्मजा जी, अगर मामन खान कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी का आदेश मानते हैं तो कांग्रेस को उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। अगर मामन खान के साथ आफताब अहमद जो कांग्रेस के डिप्टी सीएलपी हैं, यानी कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के डिप्टी लीडर हैं, अगर वो भाजपा का आदेश मानते हैं और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं इस इवेंट से पहले, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उससे पहले, तो सबसे पहला काम जो है आकर कांग्रेस के प्रवक्ता को, अपने नेता को अवगत करवाना चाहिए और इन सब लोगों को पार्टी से, अपनी पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। दिस मच फॉर कांग्रेस, दिस मच फॉर कांग्रेस। पद्मजा जी, इसके बाद इनके ये तो बोलते रहेंगे, रिटोरिक बोलते रहेंगे। कुछ लगाया है मामन खान आपके एमएलए हैं, उनका असेंबली के अंदर अभी जो बयान है वायरल हो रहा है सर, जहां पे वो कह रहे हैं कि अगर वो आदमी इधर आएगा मोनू मानेसर तो हम उसे फोड़ देंगे, ये उनके शब्द थे। तो अब आप पे चार्ज है कि आपने एक टैसिट थ्रेट के बाद लोगों को सिग्नल दे दिया कि हिंसा कीजिए। नितेश जी, मैं कांग्रेस पार्टी का होने के बावजूद मेरा स्टैंड बिल्कुल एक व्यक्तिगत स्पष्ट स्टैंड है, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का। कार्रवाई कब कर रहे हैं उस पर? कार्रवाई कब कर रहे हैं? राहुल गांधी ट्वीट कर चुके हैं। यदि वो कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, चाहे वो हमारे कांग्रेस पार्टी का विधायक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, हम उसे कतई पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के कार्यकाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद, 1947 होने के बाद मेवात के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इसका कारण वो आपको बता रहे हैं कि आपके विधायक की वजह से, इसका कारण वो आपका विधायक बता रहे हैं। अच्छा, हमारे विधायक की वजह से हुआ है तो गवर्नमेंट फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। क्यों फेल है? बताइए पकड़ेगी प्रोफेसर रावल। प्रोफेसर रावल, इफ द एमएलए हैड सेड दिस इनसाइड द असेंबली, व्हाई डिड यू वेट? आपको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि वो दंगा भड़का रहे थे असेंबली में, आप उसी दिन अरेस्ट कर लेते उनको। ये नहीं पद्मजा जी, कुछ प्रिविलेज मैं बता रहा हूँ, एक बार रुक जाइए, बता रहा हूँ। ओके, बताइए। लगातार ही बोलते रहेंगे क्या? ये लगातार बोलते रहेंगे क्या? ये इनका पॉलिटिक्स का स्टाइल है। बस लेट हिम रिस्पॉन्ड। कैन आई हैव 30 सेकंड साइलेंस? यस मैम, इट इज अ मैटर नोन टू एवरीवन कि असेंबली के अंदर जो चीजें बोली जाती हैं, every member of the assembly has some kind of privilege। उस पर असेंबली के बाहर क्या कार्रवाई हो सकती है ये सबको पता है। अब यहाँ पर आकर कुछ भी कह देना कांग्रेस वालों की आदत है, क्योंकि कैटर करते हैं ऐसे लोगों को जो लोग जो है जानकारी के अभाव में इस प्रकार के राइट्स करते हैं। दूसरी बात, जैसा कि इनकी आधी बात अगर मैं पकड़ लूं, आजादी के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये भी यात्रा तीसरी बार निकाली जा रही थी। किसी ने फेक मैसेजेस चलाए कि वहां पर मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति आ रहा है। मोनू मानेसर को क्या सजा देंगे? कोर्ट ने देनी है, पुलिस ने देनी है। राजस्थान जहां कांग्रेस की खुद की सरकार है, उनके सामने वो मामला है, वो मोनू मानेसर को खुद ही क्लीन चिट दे चुके हैं, एफआईआर से नाम हटा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आयोजकों ने मोनू मानेसर को कहा कि भाई आप यात्रा में मत आइए। यानी आयोजक पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकल जाए। मोनू मानेसर आया भी नहीं यात्रा में। उसके बावजूद भी किस प्रकार से इन्होंने मेवात, जो कि एक डिस्टर्ब्ड प्लेस रहा, ये बेशक कुछ भी बोलते रहे, अभी कुछ दिनों पहले आप और हम एक डिबेट में थे जब एक नो लेस देन डीएसपी रैंक ऑफिसर वाज शॉट डेड, उनको मार दिया गया था गोली वहां पर।
तब भी डिबेट्स हुई थी। तो ये कहना कि वहां पर सब कुछ पीसफुल है, वहां पर गोकशी रोज होती है, वहां पर गो तस्करी होती है, वहां पर किस प्रकार की घटनाएं और रोज वहां पर केस दर्ज होते हैं, पुलिस ने वहां पर पर्याप्त पुलिस भी वहां पर थी, लेकिन इस प्रकार का अंदेशा नहीं था कि वहां पर कम्युनल वायलेंस वहां पर ये फ्लेयर अप कर देंगे। कांग्रेस पार्टी जिसको 2014 से देश की और हरियाणा की जनता ने सत्ता से बाहर किया हुआ है। ओके, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं मामन खान की असेंबली की बात हो रही है। लेट मी गो बैक टू ज्ञानचंद जी। ज्ञानचंद जी, ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि बीजेपी नफरत का केरोसिन पूरे देश पर छिड़क करके मेवात नूह जैसी घटनाएं करा रही है। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, क्या उनकी सोच है, मैं नहीं समझता, लेकिन जो तथ्य हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सौहार्द के साथ आपसी भाईचारे को और जो परस्पर समभाव है, परस्पर जो आपसी भाईचारा है, उसको बनाए रखने में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और हमारा तो लक्ष्य ही समाज सेवा का है, देश सेवा का है। उसी मुख्य विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। किसी को जो कहना, ये बात कहना कि नफ़रत की राजनीति तो खुद जो लोग करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप की बात कर रहे हैं, बट जो मोनू मानेसर जिसके ऊपर अभी पूरा एलिगेशन, जिसके उंगलियां उठाई जा रही हैं, उनकी तस्वीरें हैं कई सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। वो बहुत सक्रिय रहते हैं हरियाणा की पुलिस के साथ, वो खुद अपनी फोटो वीडियो डालते रहते हैं हरियाणा पुलिस के साथ। देखिए, कोई व्यक्ति किसी धार्मिक यात्रा में शामिल होगा कि नहीं होगा, ये अपना उसका विषय है। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा वीडियो कहा होगा कि मैं ये जो धार्मिक यात्रा है इसमें मैं शामिल होऊंगा, लेकिन वो शामिल तो नहीं थे। वायलेंस तो फिर भी हुआ। मोनू मानेसर का नाम लेकर के वायलेंस करना, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। जिस प्रकार से धार्मिक यात्रा के ऊपर ये अटैक किया गया, ये तो एक बड़े षड्यंत्र का नतीजा है। अच्छा, कई लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं कि ये एक ही समुदाय विशेष ने दूसरे समुदाय के ऊपर हमला किया है, बट गुड़गांव में भी एक आदमी की हत्या की गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, देखिए, जो धार्मिक यात्रा थी वो हिंदू धर्म के लोग यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा के ऊपर अटैक हुआ, जिस प्रकार से पत्थर फेंके गए, गोलीबारी की गई, तो मैं समझता हूँ कि इसके रिपरकशन में क्या हुआ, मौलवी की हत्या कैसे हुई, किस प्रकार से क्या कारण थे, ये सब चीज़ें जांच का विषय हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार पुख्ता ढंग से इस सारे षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों को बेनकाब करने के लिए इसकी जांच कराएगी और निश्चित तौर पर जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। विश्व हिंदू परिषद क्या गलत था यात्रा निकालने में? क्योंकि खुद आपकी सरकार के अंदर से दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं कि उन्होंने पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी, इसीलिए प्रिपरेशंस नहीं किए जा सके। नहीं, देखिए, शायद मुझे नहीं पता क्या कहा है दुष्यंत चौटाला जी ने, लेकिन ये यात्रा कोई पहली बार नहीं निकली। ये हर साल यात्रा जो है इसी ढंग से बड़ी अच्छी संख्या के अंदर ये यात्रा हर साल निकलती है। और अब की बार भी जो ये यात्रा थी, जो पिछली यात्राएं हैं, उसी प्रकार से ये यात्रा यहाँ पर आई है। लेकिन जिस प्रकार से इस यात्रा को टारगेट किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक अलग जो विषय है वो सामने आया है। पर वो दुष्यंत चौटाला अकेले नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो मिसलीड हो गए। आपके सांसद भी हैं, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी कहा कि जो यात्राएं हैं उनमें किसने परमिशन दी आपको वेपन्स लाके, लाठी डंडे लाने की? ये भी तो भड़का हुआ है। नहीं, देखिए, वीडियो सब आपके सामने है। किसी ने भी कहीं पर भी ये जो शस्त्र हैं या कोई भी लहराया नहीं है। उल्टा वो तो अपने आप को बचाने के अंदर जिस प्रकार से अटैक हुआ, अपने आप को सेव करने के लिए इधर उधर भागने के अंदर लोग जो थे, अब 70-75 साल के जो
अगर ये जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बूढ़े हमारे माता पिता समान जो लोग थे, जिस प्रकार से अपनी रक्षा के लिए मंदिर के अंदर छुपे, लगभग 2500 लोग एक मंदिर के अंदर जाकर के उन्होंने शरण ली। तो अगर उनकी तैयारी होती, शस्त्र अस्त्र होते, तो फिर वो बाहर वहाँ तो लड़ाई होती, लेकिन वो तो सब अपने को बचाने के लिए उन्होंने मंदिरों के अंदर शरण ली, घरों के अंदर शरण ली। आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से हर एंगल को जांच किया जाएगा। रिमेंबर 6 people have lost their lives, unfortunate deaths, precious lives have been lost in this mindless violence. Who was responsible? That needs to be zeroed down, and those people need to be made accountable, whether it's government, whether it's miscreants. Thanks very much, all gentlemen, for joining me. That's it then from me on this edition of the Explosive Exclusive.